एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਪਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਝਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਵੈਟਨਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਟਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਨਰੀ ਆਫੀਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। आप जी क्लास 1 गजटेड ऑफिसर रहे। चाहे आप जी बहुत ही उच्चे ऑफिसर सन, पर आप जी अपनी मिट्टी नाल जुड़े हुए इंसान सन। आप जी का विआह 31 मई 1970 ਨੂੰ मिसिस मधु शर्मा जी हुणां नाल होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਰੂਪਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੋਨਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੂਪਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਮਿਤ ਸੁਨੇਜਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਸੋਨਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਲ ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ एलीट वैटनरी डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब दे प्रोमिनेंट मैंबर सन। इस तो इलावा आप जी ब्राह्मण सभा दे भी एक्टिव मैंबर सन। आप जी समाज विच चंगा असल रसूख रखने वाले इंसान सन। डॉक्टर राज शर्मा जी हमेशा ही लोड़वंद लोगों की मदद लई तैयार बर तैयार रहा करते सन। आप जी बहुत ही ग्रेट परसनैलिटी वाले इंसान सन ਅਤੇ आप जी ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਡਰੈਸਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਬ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅਰਸ਼ਿਤਾ, ਫਾਗੁਨ, ਸਨਾ, ਵੈਭਵੀ, ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸਮਾਇਰਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੂਪਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਮਿਤ ਸੁਨੇਜਾ, सोनाली शर्मा, कर्नल नितिन शर्मा, दीपक शर्मा, मोनिका शर्मा, अर्शिता, फागुन, सना, वैभवी, आर्यन, समायरा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਨ ਫਾਰਮ ਧੀਰਾ ਚੌਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। वो आप देखेंगे 5 मिनट कम 2 पर आएंगे या 2 मिनट कम 2 पर आएंगे कि केवल ऐसे करके टाइम एक निकालने के लिए। तो अगर आप सच में उनके प्रेमी हैं तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि अब हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। एक गलती तो हम कर चुके हैं कि हमने जीते जी जो भी किया ठीक है, या हो सकता कुछ ना भी किया हो, लेकिन हम अब भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि बड़े ध्यान से सुनिएगा।
टाइम की रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि 30 मिनट केवल 1.5 घंटा हमें आने में लगा है और 2 घंटे में जाने में लगेंगे, लेकिन बोलने के लिए केवल 30 मिनट है। तो इसलिए विद रिक्वेस्ट अपने कानों को मन के साथ लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो एक बार राजा जनक, जो कि उनको ऐसी परमिशन दी गई कि आप सशरीर भगवान के धाम वापस चले जाइए, उनको ये शरीर छोड़ना नहीं पड़ा। हम जितने भी लोग यहाँ पर है ना, हमें ये शरीर छोड़ना पड़ता है। आपने ध्यान दिया क्या होगा कि किसी के ये पिता थे, किसी के पति थे, किसी के साथ और रिश्ता था कोई, लेकिन जिनके साथ हम रिश्ता समझ रहे थे ना, वो तो हम शरीर के साथ समझ रहे थे और उस शरीर को हमने अपने हाथों से अग्नि दी और फिर हम कहना शुरू कर दिए पिताजी चले गए, पति चले गए, तो ये कौन था जो चला गया, उसके बारे में समझने का प्रयास करना है। जब भी कोई व्यक्ति का अंतिम संस्कार के लिए इसको ले जाया जाता है, तब एक शब्द बोले जाते हैं, राम नाम सत्य है। ये उस व्यक्ति के लिए नहीं होते, ये जो साथ बैठे हैं ना, ये उनके लिए हैं। वो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं तो चलो जो समझा समझा, तुम लोग समझो कि मैं इतना ये साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन सब यहीं पर छोड़ना पड़ा। असली चीज क्या है? राम का नाम। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु जी बता रहे हैं आप लोगों को कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस राम के नाम में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने अभी पढ़ा कि उनके जो दोनों जमाई हैं, दोनों ही फौज में बड़े बड़े अफसर हैं, लेकिन वो खुद डॉक्टर थे कि अपने आप को बचा सके, नहीं बचा सके। तो राजा जनक को ये फैसिलिटी मिली कि आप सशरीर धाम में जाइए। तो विमान आया उनको लेने के लिए। तो जब वो विमान से जा रहे थे तो उन्होंने विष्णुदूतों से रिक्वेस्ट की कि मुझे नरक देखना है। तो विष्णुदूतों ने कहा कि हमें जरूरत नहीं नरक जाने की, हम क्यों जाए वहां पर, हम गोलोक चलते हैं, भगवान के धाम चलते हैं। कहते नहीं, मेरी इच्छा है देखने की। तो कहते ओके। तो विमान को नरक के बाहर ले जाया गया और उनको बोला हम अंदर नहीं जाएंगे, आप जाइए और देख के जल्दी वापस आइए। जैसे ही वो नरक के अंदर गए तो वहां पर उन्होंने सीन देखा, तो वो सीन देखकर ही घबरा गए। वो देखे कि अपना वो ये क्या हो गया है, कोई कड़ाई में तला जा रहा है, कोई उसको अंग काटे जा रहे हैं, किसी को लटकाया जा रहा है, बड़ा भयानक दृश्य। तो वो वापिस जाने लगे। तो जैसे वो वापिस जाने लगे तो नरक की आत्माएं जो थी वो एकदम से बोल पड़ी, महाराज महाराज। तो जनक महाराज रुके, कहते महाराज रुकिए, हम करोड़ों जन्मों से यहाँ पर, करोड़ों सालों से यहाँ पर तड़प रहे हैं, आपके आने से हमें राहत मिली है। तो जो भक्त होते हैं उनका स्वभाव होता है पर दुख है दुखी, दूसरों के दुख को देखकर वो दुखी होते हैं। तो जनक महाराज वहीं बैठ गए, विष्णुदूत बाहर आवाजें लगा रहे हैं, महाराज चलो 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 चलो। जनक महाराज कहते अब तो जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो विष्णुदूतों ने भगवान विष्णु से मोबाइल के द्वारा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अपना संपर्क किया और उनसे कहा कि वो आ नहीं रहे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब तक नरक के सारे पापी रिहा नहीं किए जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप उनसे कहिए कि आप अपने सारे पुण्य दान कर दीजिए, इन लोगों को छोड़ देंगे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जनक महाराज ने दूसरा सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने जल से आचमन किया, संकल्प लिया और अपने सारे पुण्य इसको दान कर दिए, नरकवासियों को दान कर दिए। देखते ही देखते नरक खाली हो गया। अभी जनक महाराज वहीं पर बैठ गए, जब करने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुदूत कहते महाराज चलिए। कहते मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे तो सारे पुण्य दान कर दिए गए। कहते महाराज दान देने से कोई चीज कम नहीं होती, आपके पुण्य तो 100 गुना बढ़ गए हैं, इसलिए चलिए। तो कहने का क्या तात्पर्य है, इस कथा कीर्तन को सुनने से आप सबको कोई ना कोई पुण्य मिलेगा। सबको, मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा। आप सब लोग एक संकल्प के साथ बैठिए कि इस कथा का जितना भी पुण्य होगा वो सब डॉक्टर साहब को अर्पित। आपके आंसू वहां पहुंचे ना पहुंचे, आपके पैसे वहां पहुंचे ना पहुंचे, आपका जल वहां पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आपके इन पुण्यों का फल वहां पर 101% पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप उन्हें क्रिएट करें तो, और उसे क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी इस जीवा के द्वारा इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा।
2 मिनट के लिए केवल। उसके बाद हम एक और भजन गाएंगे, उसके द्वारा हम जीवन की सच्चाई को बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ लगेगा तो आप भी उस रास्ते को चुनिएगा, अन्यथा थोड़ी देर के बाद तो जाना ही पड़ेगा सबको। तो 2 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। प्रार्थना मेरी ये है कि सब लोग पीछे बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग बोलिए, अगर सच में आप प्रेम करते हैं तो अपने इन शब्दों को उच्चारण कीजिए। जिस प्रकार कनाडा से पैसे डाले जाएं तो यहाँ पे रिसीव हो सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर इस जप को करके उन तक पहुंचाया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, हम दूसरे चांस के लिए इंतजार करते हैं कि हमें दूसरा मौका दिया जाएगा, लेकिन समय कभी कभी दूसरा मौका नहीं देता। फिर भी हमें समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में ये सारा विधान क्यों बना। ये गरुड़ पुराण जी का पाठ होता है, 7 दिन के लिए गरुड़ पुराण जी का पाठ होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि इस वक्त
परिवार और परिवार के सदस्य शो का गुण है, और शो के कारण वो थोड़ी देर आराम से बैठ जाएंगे। अन्यथा क्या कोई कथा सुनने के लिए किसी को बुलाया जाए तो वो क्या कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जिस चीज के लिए टाइम होना चाहिए उसी के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो हम लोग मानिए कहीं पर जाते हैं तो उनसे, जो सुनने वाले हैं उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो जाने वाला है वो जा चुका है, लेकिन वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म छोड़ के गया है कि अगर हम इन बातों को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयास करें। तो एक भजन है, इस भजन में जीवन की सच्चाई बताई गई है। तो अगर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि आप भी इस पर चलने की कोशिश करें। तो शब्द कहां से शुरू होते हैं? शब्द शुरू होते हैं, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों ने अपना सारा जीवन लगाया है इसमें, ये वाला धन कमाने में, लेकिन मुश्किल ये होती है कि ये धन हमारे साथ नहीं जाता। अंत समय में जो चीज हमारे साथ जाने वाली होती है उसके लिए हमने टाइम नहीं दिया होता। तो ये कुछ लाइनें हैं, बड़ा है भजन, उम्मीद करेंगे हम 15 मिनट में से समाप्त करने की। तो कहते हैं, लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, पता क्या कौन सी श्वास को तेरी मौत चुन ले। एक बार मर्दाना जी जो कि नानक जी के साथ होते थे, उनको पूछते हैं, नानक जी ने मर्दाने से पूछा कि मर्दानिया 10 जीवन कितना के जा रहा है? तो मर्दाना जी कहते हैं आज है कल नहीं है। तो कहते हैं नहीं नहीं, जीवन इतना लंबा तो नहीं हो सकता। तो मर्दाना जी कहते हैं कि इस घड़ी है उस घड़ी नहीं है। कहते नहीं नहीं नहीं, इतना लंबा भी नहीं हो सकता। तो कहते फिर आप बताइए। तो नानक जी कहते हैं, एक श्वास आवे दूजी आवे के ना आवे, कुछ नहीं कहा जा सकता, इतना जीवन है बस। लेकिन इस छोटे से जीवन में हम बहुत बड़े प्लानिंग लेकर बैठे हैं सब लोग। तो कहते हैं, है जब तक श्वास तब तक तू चाहे तो कुछ कर ले, और वो कुछ क्या है? भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। निकल जाएगा दम तो, निकल जाएगा दम तो, कोड़ी से ना महंगा है दम तेरा। ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो अभी इनको, शमशान है पहुंचाना। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वही शहीद होता है जिसके साथ पत्नी ने हजारों बार आलिंगन किया होता है, लेकिन जब वो शरीर से आत्मा निकल जाती है, परमात्मा निकल जाते हैं, तो अब वो व्यक्ति नहीं रहता, अब वो क्या बन जाती है? बॉडी। और उस वक्त उसके साथ कोई आलिंगन नहीं, रिश्ता भी टूट जाता है। और अब क्या कहते हैं, नहीं नहीं जल्दी लेके चलो। जो घर में आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठकर तुझे खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल कोई दूध लाते थे, कोई कोका कोई लिम्का कोई कॉफी पिलाते थे। अब वो घर में तेरे रह के भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे खुद भी ना तुझे खिलाएंगे। काम सब छोड़ के पहले तुझे मरघट पहुंचाएंगे। तो इसलिए अब जब ये मौका आ गया तब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले कर सकते हैं। क्या? इस वक्त कर सकते हैं, जब तक हमारे अंदर ये आत्मा है तब तक हम भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन मुश्किल यही है कि लोगों के पास समय नहीं है। अब वहां पर जाकर क्या होगा, इसको भी जरा ध्यान से सुन लें। देखा हमने कई बार है, देखा हमने कई बार है, लेकिन आज कानों के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारे साथ भी होने वाला है। वहां जाकर करेंगे क्या, ये भी जरा ध्यान से सुन लो। समझ में आ जाए तो प्रेमा भक्ति का रास्ता तुम चुन लो। वहां जाकर
मगर कर क्या कोई सकता है, अब नहीं कोई चारा है, भजन श्री कृष्ण के बिना अब ना कोई सहारा है। खड़े सब मित्रगण साथी सगे जो रिश्तेदार हैं, धर्म पत्नी बहू बेटी सब रोते जो रोजार हैं। मगर साथ में लाला के जाने वाला कौन है, बिना श्री कृष्ण के बिगड़ी बनाने वाला कौन है। घी डालकर मुख पर अग्नि लगा दी, देखो दुनिया के लोगों ये कैसी सजा दी। अभी इस बात को समझने का अगर प्रयास करें तो इसमें एक कथा जोड़नी पड़ेगी। एक बार एक शिष्य था, वो अपने गुरु जी से बड़ा स्नेह करता था और गुरु जी उसको समझाते थे कि बेटा भक्ति करनी चाहिए। लेकिन किसी दिन वो घर आया तो अपने माता पिता के कहने पर उसने शादी कर ली और फिर गुरु के आश्रम में नहीं गया। 6 महीने बाद गुरु जी आए घर पे, तो बेटा तू आया ही नहीं। और गुरु जी आप तो मुझे गलत शिक्षा देते थे, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। पता है शादी करके मैं कितना सुख आनंद ले रहा हूँ, मेरी पत्नी मुझे प्रेस किए हुए कपड़े देती है, भोजन बना के देती है। आप तो मुझे झूठ बोलते थे कि ये परिवार जो है ये हमारा कुछ नहीं, भगवान ही हमारे सब कुछ है। तो कहते कोई बात नहीं, मैं तुझे एक फार्मूला बताता हूँ, उससे तुझे समझ लग जाएगी। कहते क्या? कहते ये पूरी है, इस पूरी को खाना, इससे क्या होगा, तू ऐसा लगेगा लोगों को कि तू मर गया, लेकिन तू सब कुछ सुन सकेगा। और मैं एक पूरी तेरी जेब में डाल रहा हूँ, जब मैं मरूंगा ना तब ये पूरी मुझे खिलाकर जीवित कर देना। कहते ठीक है जी। उसने पूरी खाई, ऐसा लगा कि वो मर गया है। अब जब मर जाता है कोई व्यक्ति तो आप सब जानते हैं, घर वाले जो भी पास खड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, क्या कहता है, हाय हाय वे रब्बा तू इन्हों क्यों ले गया, तू मैनू ले जाएगा। ऐसी बातें लोग करते हैं अक्सर। अब क्या हुआ, इतनी देर में गुरु की एंट्री हुई। तो गुरु कहता है रो मत, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तुम में से किसी को अपने प्राण देने पड़ेंगे। अब आई सच्चाई सामने। ड्रामे करना बड़ा आसान काम है, लेकिन सच्चाई में जीना बहुत मुश्किल काम है। तो अब जब पिता से पूछा गया कि पिताजी आपका तो पुत्र चला गया, आप तो बड़ा रो रहे थे, हाय तेरी थोड़ा उम्र सी जान दी, मैं क्यों नहीं चला गया तेरी जान दे, अब आओ आगे। अब पिता पीछे हो गया। अब जब माँ से पूछा गया तो माँ कहती मेरा पति अभी नहीं जा रहा तो मैं कैसे जाऊं। पत्नी से पूछा गया, कहती लो ये बूढ़े नहीं जा रहे तो मैं तो जवान हूं, अभी मैंने क्या देखा दुनिया में। तो बाद में वो गुरु कहता है अच्छा चलो मेरा तो ये बड़ा प्रिय शिष्य था, मैं ही अपने प्राण दे देता हूँ। ओ गुरु जी आप कितने अच्छे हैं, आपका तो जन्मी कल्याण के लिए, हाँ आप मर जाओ। तो गुरु ने वो पूरी खाई, उससे पहले उस लड़के को पूरी खिलाई, लड़का जिन उठा, जीवित हो उठा। अब गुरु मर गया। अब सारे परिवार वाले हाय 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 मम्मी 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 पापा 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 करने लगे। तो कहता पीछे हो जाओ, सारे पीछे हो, देख लिया मैंने तुम लोगों को, हम सब लोग अपने परिवार वालों के लिए एटीएम की तरह हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी गृहस्थ हूं, एक मेरे भी 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, लेकिन हम इनके चक्कर में अपने आप को भूल चुके हैं। अरे 24 घंटे में से 10 मिनट तो अपने लिए निकालिए, इस भगवान के नाम को लीजिए 10 मिनट के लिए, इससे हमारा कल्याण होगा। अन्यथा ये सारा जीवन जो है हम लोगों के लिए ही जी छोड़ेंगे। तो अभी वो क्या किया, अपने गुरु के साथ चल पड़ा। अभी देखिए क्या लिखा है, जिस तन को ठंडे जल से साबुन से नहलाते थे, जिस तन को तेल इत्र सुगंधित महकाते थे, जिस तन को वस्त्र आभूषण से सजाते थे, उस तन में वही लोग आज आग लगाते हैं। ये संसार का नियम बनाया गया कि अग्नि भी कौन देता है, जो पिता को सबसे स्नेही होता है, पुत्र। ये दिखाने के लिए कि ये संसार हमारा नहीं है। एक भजन की लाइन है, उसमें कहते हैं विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ राज भगवान का। मतलब विषयों के राही, हे राही अब रुक जा, हम राही हैं सब लोग यहाँ पर, लेकिन हम विषय विकारों में लगे हैं। ये विषय विकार जानवरों के शरीर में भी उपलब्ध है, लेकिन हम इस जीवन को भी इन्हीं कामों में लगाए हैं।
ये जीवन इसके लिए नहीं है, ये जीवन मिला है एक खास काम के लिए, और वो है अपने घर वापस जाने के लिए। और उसके लिए एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भगवान के नाम को लेने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग संकल्प लेकर बैठे, आपका मेरे को पता नहीं, मैं संकल्प लेकर बैठा हूं। जब मैंने उनको फूल अर्पित किए तो मैंने ऐसे नहीं कर दिए एक ड्रामे के ऊपर कि आए हैं तो फूल अर्पित करने ना, मैंने संकल्प लिया उस वक्त कि इस कथा से मुझे जो भी फल मिलने वाला है वो डॉक्टर साहब को अर्पित किया जाए। हम तो देखो उनको जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारा इतना स्नेह बन गया उनके साथ। आप तो सब उनके जान पहचान वाले हैं, तो इस नाम को लेने में परहेज मत कीजिएगा। फिर कहते हैं, शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, रहे देखते ही लोग वो जलता चला गया, अग्नि में वो जलकर राख बनता चला गया, राख बनकर मिट्टी में मिलता चला गया, अपने कर्मों पर रोता और पीटता चला गया। जब पता चले ओहो मिस कर दिए काम को, ये जीवन मिला था और किसी काम के लिए हमको कहीं और लगा दिए, लेकिन आज डॉक्टर साहब की वजह से इतने सारे लोगों को समझने का मौका मिल रहा है कि भाई जागो, जीव जागो, घोड़ा चांद बोले। गुरु नानक देव जी वाणी में कहे हैं, हरि हरि जपंतिया कछु ना कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। लेकिन इस हरि के नाम से हमने नाता जोड़ लिया है। क्या कहते हैं, शब्दों की ओर पुनः ध्यान दीजिए, जोड़ा था जिस धन माल को सब छोड़कर चला गया, सबसे सदा के लिए नाता तोड़कर चला गया, जो जोड़ने में कई मास कई वर्ष लगे थे, वो तोड़ने में कुछ मिनट श्वास लगे हैं। अभी वहां पर क्या करते हैं सब लोग, ये भी जरा सुन ले। साथी सब शमशान से घर लौट कर आए, कोई रोए कोई पीटे कोई उसको समझावे, कोई कहता बनाओ भोजन मेहमान आए हैं, सभी बैठे हैं भूखे रात को भी कुछ नहीं खाए हैं। अभी हैरानी वाली बात है, मेरे बड़ा क्लोज, मतलब कि आप समझ लीजिए मेरे बड़े भाई का बिल्कुल क्लोज में एक रिश्ता, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, 30 साल की लड़की, 32 साल का लड़का, हार्ट अटैक हुआ, लड़का मर गया। अब जब हम गए उस घर में तो लड़की का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। लड़की ऐसे लग रहा था कि साथ ही जाने वाली है। विश्वास कीजिएगा 10 दिन के बाद मैं उस लड़की से मिला, वो गोलगप्पे खा रही थी और फूल कर हंस रही थी। इस दुनिया में कोई सजा नहीं है, और जो सजा है ना उसके प्रति हम 10 मिनट भी देने को तैयार नहीं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो प्रार्थना यही है, घर वालों से खास करके बेटे से कम से वैसे तो सारी जिंदगी के लिए नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए 10 मिनट आराम से एक जगह पर बैठिए और पिताजी के लिए जिसको जो भी रिश्ता है बैठकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। इस कलयुग के अंदर बताया गया है, हरे नाम एव ही केवलम, कलो नास्तेव गति अन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आप जब करेंगे उनको अगर कोई कमी मिल भी रही होगी वो कमियां दूर हो जाएंगी और आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मान लो अगर आप सोचे और नहीं हम नहीं मानते, मत मानो, लेकिन मानो अगर जग लग गया तो आपसे कितना टाइम मांगा जा रहा है, केवल 10 मिनट। अगर आप 10 मिनट भी नहीं दे सकते फिर तो ये प्रेम नहीं है। शब्द है, प्रीत की ये रीत नहीं, प्रभु जागत है तुम सोवत हो। भगवान सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और हम लोग 7-7 बजे तक सोए रहते हैं और फिर कहते हैं कि हम भगवान के प्रिय हैं। ऐसा नहीं होता। फिर आगे सुनिए, जला चूल्हा बना भोजन, पेट भर खाए सभी, गए सब लौट करके घर को जहां से थे आए। हैरानी की बात बताऊं, आज तो यहाँ पर सभी दुखी हैं। 1 साल के बाद और तब भोजन भी लगता है, तब पता क्या ढूंढेंगे सब रिश्तेदार, यही रिश्तेदार होंगे। क्या पूछेंगे मालूम, ओ मिठाई रखे, खीर नहीं बनाई, कड़ा नहीं बनाया,
आइसक्रीम रखी, ये पूछेंगे। इसलिए रोना भावना है, लेकिन जो करना है वो कुछ और है। भगवत गीता में अर्जुन बोला भगवान को कि तू ही कहते हो कि वो कोई नहीं दुख ना कर मार दे रहा हूं, नहीं तो मैं तो मार ही देना, मैं वो मेरा दादा तो चला जाएगा ना। तुम कहते हो कि ये परिवर्तन है, घूमता रहेगा, वो मेरा दादा तो गया मेरे हाथ से। तब भगवान कहते हैं तू रोक सकता है? अगर तू आज युद्ध नहीं करेगा तो क्या तेरा दादा बचा रहेगा? ये तब भी जाएगा। लेकिन अगर आज तू इसे मारेगा तो इसको क्या मिलेगा? इसको स्वर्ग मिलेगा। इसलिए कर्म करने हैं, बढ़िया से करने हैं, समझ कर करने हैं। शब्दों की ओर ध्यान दें। माता पिता पत्नी जो बहन भाई थे, जो हर समय हर काम में होते सहाय थे, बेटे बहू बेटी बड़ी कन्या दामाद थे। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। परिवार बड़ा नेक था और खुद भी उस्ताद थे। हम सब जीते जी बड़े उस्ताद हैं। अब शब्दों की ओर ध्यान दें। पर आज वो सूरत काफूर हो गई जो हमेशा के लिए हमसे दूर हो गई। अब ये हम सब लोगों के लिए शिक्षा है। संसार क्या है? संसार क्या है? ये धोखाधड़ी है, माया जाल पे छाकर सबके पीछे खड़ी है। सत्संगियों तुम देख लो संसार यही है, होता है सबके साथ में व्यवहार यही है। भिक्षुक यति या कोई योगी फकीर है, महंत मठधीश या कोई शूरवीर है, आया है जो इस जग में वो जरूर जाएगा, कर्म अनुसार फल भी वो जरूर पाएगा। इसलिए कर्म करते वक्त सोचना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। जब भगवान का नाम लेने की बारी आए तब ये होंठ सिल जाते हैं, और जब गाने गाने की बारी आए तब ये गला स्पीकर बन जाता है। एक बार प्रभु जी की शांति के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी देखिए, ईश्वर के घर में न्याय है, अन्याय नहीं है, उसकी पकड़ से बचने का उपाय नहीं है। ईश्वर सबका मालिक है, इंसान नहीं है, क्योंकि भगवान की कोई जाति नहीं है। अब निचोड़ निकल रहा है, सार एसेंस ऑफ ये भजन का एसेंस क्या है? कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, रहेंगे धन वचन मगर ये साथ जाएगा। अगर आप में से कोई भी कनाडा जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, तो ये करेंसी वहां नहीं चलती, चेंज करानी पड़ती है। मीरा भाई को ये पता था, इसलिए मीरा भाई एक भजन की लाइन में लिखी, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इस नाम रतन को इकट्ठा कीजिए, जितना कर सकते हो उतना इकट्ठा कीजिए। और इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, कहीं आना जाना जरूरी नहीं, घर में बैठकर हो सकता है, काम करते करते हो सकता है। लेकिन मुश्किल है, समझाने वाला कोई नहीं है। आप लोग यहाँ पर आए ना, हम लोग भी बड़े चौथे किए हैं, आपकी तरह बैठे हैं वहां पर जाकर। जो बोलने वाला है ना, उसको क्या लेना है? हम लोगों को ये नहीं चाहिए। मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूं, लेकिन हमें ये बात समझ लग गई कि ये बात लोगों को समझाना बड़ा जरूरी है। मुझे जैसे ही फोन आया कि एक ऐसे दुखद समाचार है, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैंने नहीं सोचा कि यार मेरे को 1.5 घंटा लग जाएगा जाने में, 1.5 घंटा बाद में आने में लगेगा, तो मैं क्या करूंगा वहां पे जाके, और लोग सुनते भी नहीं। लेकिन हमारा काम है भगवान के सामने सच्चा होना। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मुझे उस व्यक्ति से अधिक कोई प्रिय ही नहीं है जो मेरे इस संदेश को दूसरों में बताता है। तो लाइन सुनिए, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, रहेंगे धन में जन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की मत आश कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए। समझ रहे हैं ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र मित्र ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान की जब काल प्राण लेता है, तो गैरों की क्या बात है, ये तन भी नहीं साथ देता है। इसलिए
मेरी आप सब लोगों से, जो जो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे एक प्रार्थना है। आप अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए, इसमें कोई आपका दाम नहीं लगेगा। और अब आपको बोलना है पीछे, हरे कृष्णा। कितने कम लोग नहीं हैं यहाँ पर, कितने कम लोग नहीं हैं। एक बार पुनः आपको मौका देता हूँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शायद आप लोगों को लग रहा है कि मेरे आगे माइक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। कृष्णा कृष्णा। हरे हरे। हरे राम। हरे राम। हरे राम। हरे राम। राम राम। राम राम। हरे हरे। हरे हरे। और संकल्प पूर्वक जो हमने पहले संकल्प करना, उसी संकल्प को पुनः दोहराते हैं कि इस कथा कीर्तन से भगवान हमें जो भी फल दें, वो सारा का सारा जो है वो डॉक्टर साहब को मिले और उनकी जो आगे की यात्रा है वो सुखद हो। अब हम उनकी यात्रा में कोई मदद नहीं कर सकते। अगर वो हमारे साथ होते तो हम मानो उनको गद्दी दे देते, कोई सोफा दे देते, लेकिन अब हमारा ये भजन ही उनके काम आएगा। इसलिए अगर जो सच में उनको अपना प्रेमी मानते हैं, वो भजन करेंगे कम से कम महीना, नहीं तो रेस्ट ऑफ योर लाइफ 10 मिनट के लिए भगवान के इस नाम को अपने जीवन में जोड़ लीजिए। स्वयं को जानने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के रहस्य को जान लेना। जन्म और मृत्यु का रहस्य जो है, जब व्यक्ति उसको जान लेता है तो इस संसार के समस्त दुखों से छूट जाता है। और उसको जानने के लिए हरि नाम का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि भ्राताश्री ने हमारे बताया कि हरि नाम का सहारा लीजिए, हरि नाम ही केवलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनाम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कहते हैं सर्वप्रथम अपनी आत्मा को जानिए। अर्जुन कहते हैं संसार में जानने योग्य वस्तु क्या है, जानने योग्य चीज क्या है। भगवान कहते हैं स्वयं को जानना, आत्मा के विषय में जानना। और इस आत्मा के विषय में आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनाम, कोई महापुरुष इस आत्मा के विषय में आश्चर्य की भांति वर्णन करता है और एक महापुरुष इसको आश्चर्य की भांति सुनता है और एक महापुरुष जो है आश्चर्य की भांति इसको देखता है। और कुछ लोग तो इसको देख करके सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं। अब बड़ी सहज सी भाव में कह दिया गया कि भगवान का नाम का सहारा लीजिए, हरि नाम का सहारा लीजिए, परंतु ये जो मन है, ये मन तो भगवान में लगता ही नहीं, भगवान के चरणों में लगता ही नहीं। इस मन को कैसे लगाएं? तो सांख्य योग में भगवान कपिल मुनि ने अपनी माता को उपदेश किया है। 5 वर्ष के कपिल मुनि भगवान का 5वां अवतार है। 5 वर्ष के कपिल मुनि व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं और उनके सामने बैठी है 60 वर्षीय वृद्धा माता और भगवान से प्रश्न करती है कि निर्विन्दानितरां भूमन् असदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमप्रभो। माता कहती है, हे प्रभु, हमारी जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये हमें संसार में अपने प्रयोग खींचती हैं। जीवा कहती है सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ चाहिए खाने के लिए, कान कहते हैं सुंदर संगीत चाहिए सुनने के लिए, आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य चाहिए देखने के लिए, नाक कहती है सुंदर सुगंधी चाहिए और ये त्वचा त्वगेंद्रिय कहती है सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। हालत कैसी हो गई? बहुव्यः सपत्नीः गेह पतिं लुनन्ति, जैसे एक व्यक्ति की बहुत सी पत्नियां हैं और वो अपनी अपनी ओर खींचती हैं। माता देवहूति कहती हैं भगवान कपिल मुनि से, कहती भगवान मेरे 2 प्रश्न हैं, इंद्रियां बस में कैसे हो और बंधन किसका होता है और मुक्ति किसकी होती है? बंधन शरीर का होता है कि बंधन आत्मा का होता है या बंधन मन का होता है? तो पहले प्रश्न में भगवान कहते माता इंद्रियों को तो बस में होना ही चाहिए कि देखना इंद्रियों के न भोरे भवे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
भगवान कपिल मुनि कहते हैं माता इंद्रियों को तो वश में होना ही चाहिए। और ये इंद्रियां कैसे वश में होंगी? इंद्रियों को संयम रूपी कोड़े से वश में किया जा सकता है। ये जो इंद्रियां है ना हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 घोड़ों के समान है। ये रथ, ये हमारा शरीर रथ है और ये इंद्रिय रूपी घोड़े शरीर को जिधर खींचती है उधर चला जाता है। तो इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को यदि वश में करना है तो संयम रूपी कोड़ों से होगा। मन कहता है रसगुल्ला चाहिए खाने के लिए तो खाइए, कोई मना थोड़ी करता है, परंतु भगवान को भोग लगा के उसको प्राप्त कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। भगवान को अर्पित करके यदि कोई चीज़ का उपयोग करेंगे तो वो जो है बंधन कारक नहीं होगा, और यदि अपना है मान करके उपभोग करोगे तो बंधन कारक होगा और रोग कारक भी होगा। इसलिए इंद्रियों को वश में होना ही चाहिए और ये इंद्रियां संयम रूपी कोड़े से होगा। दूसरा प्रश्न, बंधन आत्मा का होता है, बंधन शरीर का होता है या मन का होता है, और मुक्ति किसकी होती है? आत्मा का, शरीर का या मन का? कपिल मुनि कहते हैं माता आत्मा की मुक्ति के विषय में सोचना तो नासमझी है, क्योंकि आत्मा का बंधन कभी होता नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं नैनम सुंदन सत्प्राणी नैनम दहति पावका नचैनम क्लेदेन त्यागो नशोषयति मारुता। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र भेद नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती और जल डुबो करके मार नहीं सकता। ये तो शाश्वत है, चिन्मय है। ये तो जन्म से पहले भी थी और जन्म के बाद में भी है। आत्मा जनानात् अमृतस्य मेघदेशौ नक्षीयते शवं विचारणामि, उपनिषदों में गाया है। कहते हैं आत्मा जनानात् अमृतस्य मेघदेशौ, आत्मा न मरती है और न जन्म लेती है। आत्मा तो अजर और अमर है, शाश्वत है। ये तो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। इसलिए इसकी मुक्ति के विषय में सोचना तो बिल्कुल नासमझी है। और दूसरा, शरीर के विषय में बोले, शरीर के विषय में, शरीर की मुक्ति के विषय में सोचना तो बिल्कुल डबल नासमझी है, क्योंकि शरीर की मुक्ति होती नहीं। और ये जो शरीर है, ये शरीर परिस्थितियों में बना हुआ है। परिवर्तनीय संसार मृतको वा न जायते, जिस प्रकार से ये संसार परिवर्तनशील है उसी प्रकार से शरीर भी परिवर्तनशील है। और ये जो है परिस्थितियों में बना हुआ है। आज जो परिस्थिति है वह 1 वर्ष बाद जरूर बदलेगी। 1 वर्ष में जो परिस्थिति है वह 1 महीने में बदलेगी, जो 1 महीने की है वह 1 दिन में बदलेगी, जो 1 दिन की है वो 1 घंटे में बदलेगी, जो 1 घंटे की है वह 1 मिनट में बदलेगी, जो 1 मिनट में बदलती है वह 1 सेकंड में बदलेगी, और जो 1 सेकंड में है वह 1 पल में बदलेगी। और इसी बदलने का नाम जीवन है। जब से हमने जन्म लिया वास्तव में हम मर ही तो रहे हैं। जब से हमने जन्म लिया, जन्म लेते ही हमारा मरना प्रारंभ हो जाता है, और आश्चर्य कि हम इसको जीवन कहते हैं, इसी को हम जीवन कहते हैं। इस शरीर का नाम है मरण धर्म, इसको तो मरना ही मरना है। चाहे पंडित जी हो, चाहे मंत्र जी हो, चाहे संत जी हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे संतरी जी हो, चाहे खंत्री जी हो, एक ना एक दिन इसको मरना है, तुम्हारी मरना है। इसको चाहे जितने महंगे साबुन से रगड़ रगड़ करके नहला लो, च्यवनप्राश के डिब्बे चाट जाओ, घी के ड्रम दूध पी जाओ, परंतु इसको मरना है तो मरना है। शरीर की 3 ही परिस्थितियां हैं, क्रमिक भी भस्म संज्ञान पर। फेंक दोगे तो जानवर खा जाएंगे, मिट्टी के नीचे दबा दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और जला दोगे तो राख बन करके उड़ जाएगा। क्रमिक भी भस्म संज्ञान का, ये शरीर की 3 ही परिस्थितियां हैं। और जो मन है वास्तव में संसार में बंधन और मुक्ति का कारण है, वह मन है। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। कि मनः मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयः अबद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। ये जो मन है ना, ये मन बहुत भटकता है संसार में। पहले कहता है कि एक पुत्र हो जाए तो बड़ा आनंद प्राप्त हो जाए, फिर एक फैक्ट्री बन जाए तो जो है मन को शांति मिल जाएगी, फिर पुत्र का विवाह कर लूँ, फिर उसको एक पुत्र हो जाए, फिर ऐसे बिजनेस मेरा बढ़ता चला जाए, और जब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ या बहुत पैसे वाला धनवान हो जाऊँ, संसार के समस्त सुख भोग लूँ, फिर मर जाऊँ शांति से। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। पहले लोग छोटा सा बिजनेस करते हैं, फिर दुकान बनाते हैं, दुकान से फिर फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री से फिर धीरू भाई अंबानी और अनिल अंबानी बन जाते हैं, फिर भी मन को शांति नहीं, फिर भी लगे हुए हैं पैसे कमाने, धन के पीछे भाग रहे हैं।
वास्तव में संसार में चाहे जितना करोगे लेकिन मन को शांति नहीं मिल सकती। बोले मन को शांति कहाँ मिलेगी? जेल में जब भगवान प्रकट हुए माता देवकी के सामने, वसुदेव के सामने, तो माता देवकी कहते हैं कि मर्त्यो मृत्युभ्याभितः पलायन् सर्वान् लोकान् निर्भयन् नाभ्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदक्षयाद्य स्वस्तस्यैते मृत्युरस्मादपैति। माता देवकी कहती है भगवान से, प्रभु यह मन संसार में दसों दिशाओं में दौड़ता है मृत्यु के भय से, मृत्यु से भयभीत होकर के प्राणी दसों दिशाओं में दौड़ता है कि मेरे मन को कहीं शांति मिल जाए, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती है। बोले फिर मन को शांति मिलेगी कहाँ? बोले स्वस्थस्यैते मृत्युरस्मादपैति तत्पादाब्जं प्राप्य यदक्षयाद्य। यह जीव जब आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, आपके चरणों को समर्पित हो जाता है, तभी इसको शांति प्राप्त हो जाती है। किसी ने मन से पूछा तुम लोगों को इतना भटकाते क्यों और देते कुछ लोगों को कुछ हो नहीं? मन कहता है लोग मेरे से जो मांगते हैं वो मेरे पास है ही नहीं, इसलिए मैं लोगों को भटकाता रहता हूँ। लोग मेरे से मांगते हैं शांति और शांति मेरे पास है ही नहीं, इसलिए मैं लोगों को खिलौने देता रहता हूँ कि जब फैक्ट्री बना ले, पहले दुकान बना ले, फिर ये काम कर ले, फिर वो काम कर ले, तो मन को शांति मिल जाएगी और फिर भजन करूँगा, लेकिन मेरे पास वो है ही नहीं, इसलिए मैं खिलौने देता रहता हूँ लोगों को, शांति नहीं मेरे पास। तो बोले शांति कहाँ मिलेगी? बोले तत्पादाब्जं प्राप्य यदक्षयाद्य। जब भगवान के चरणों में मन चला जाता है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, हरि नाम का आश्रय ले लेता है, तब जीव जो है स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थस्यैते मृत्युरस्मादपैति, अभय हो जाता है जीव। इसलिए भगवान के नाम का सहारा लीजिए और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए। भगवान के चरणों में मन लगेगा कैसे? जब हम भगवान के नाम का सहारा लेंगे, हरि नाम का सहारा लेंगे, तभी हमारा मन जो है भगवान के चरणों में लगेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। समय अभाव होने की वजह से अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और 2 मिनट का और जो हमारा कार्यक्रम बचा हुआ है उसको पूर्ण कर लेते हैं, फिर आप सभी लोग जो है पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हमारे पास ये जो कुछ शोक पत्र आए हुए हैं, एक तो महर्षि दयानंद मठ वेद मंदिर जालंधर से आया हुआ है कि हिंसा सत्यम क्रोध त्याग आत्मदया दया भूसे श्लोकोत्तम नवदेव ही परिपालन। मन से वाणी से कभी भी किसी को कष्ट ना देना, सदा सत्य और मीठा बोलना, कभी किसी पर क्रोध न करना, अभिमान का त्याग, चंचलता कभी न करना, कभी किसी की निंदा चुगली न करना, सदा सब पर दया करना, लोभ मोह का त्याग, सदा सत्य सम्मत आचरण करना, जैसे शास्त्र कहते हैं वैसा आचरण करना। इन्हीं सब गुणों को जीवन में धारण करने से मनुष्य को समाज में सम्मान स्थान मिलता है। महर्षि दयानंद मठ वेद मंदिर जालंधर के बहुत ही प्रिय आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र जी सुनेजा जी की समाधि से स्वर्गीय डॉक्टर राज शर्मा जी पठानकोट, जिनका निधन 26 जून को हो गया था। अतः महर्षि दयानंद मठ वेद मंदिर जालंधर से साप्ताहिक सत्संग के दौरान वेद मंत्रों द्वारा आहुतियाँ डाल करके दिवंगत आत्मा की शांति एवं सद्गति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। प्रभु चरणों में प्रार्थना की इस दुख की घड़ी में आदरणीय श्रीमती मणि शर्मा जी, प्यारे बच्चों श्रीमती सोनिका शर्मा जी, श्री दीपक शर्मा जी, बेटी रूपाली जी सुनेजा जी, ब्रिगेडियर श्री अमित सुनेजा जी, बेटी सोनाली शर्मा जी, कर्नल नितिन शर्मा जी एवं लाडले बच्चों अर्चना, फागुन, सना, वैभवी, आर्यन एवं समयरा, समस्त परिवार को यह दुख भरा जो है विद्रोह सहने की शक्ति भगवान प्रदान करें। महर्षि दयानंद मठ के सभी सदस्यों की ओर से इस दुख की बेला में महर्षि परिवार जो है हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए प्रभु कृपा बनी रहे। एक बार फिर से दिवंगत आत्मा हेतु प्रभु चरणों में जो है विनय के साथ परिवार को शुरू कर देंगे। एक शोक पत्र मिला है, श्री ब्राह्मण सभा की ओर से आया हुआ है। श्री ब्राह्मण सभा रजिस्टर पठानकोट डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, निवासी शास्त्री नगर पठानकोट जी से अचानक निधन पर गहरे रजोगम एवं शोक का इजहार करते हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ब्राह्मण सभा रजिस्टर पठानकोट के आजीवन सदस्य थे। श्री ब्राह्मण सभा रजिस्टर पठानकोट के विभिन्न प्रकल्पों, आर्थिक और पिछड़े परिवारों की शादियों, मेडिकल सहायता एवं एजुकेशन से जो है मदद आदि से हर वर्ष योगदान दिया करते थे। उनकी स्नेहमयी याद हमेशा ब्राह्मण सभा में बनी रहेगी। हम भगवान श्री परशुराम जी से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने और परिवारजनों को इस दुख में, इस घड़ी में
दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। एक जो है ये शोक पत्र प्राप्त हुआ है एसोसिएशन ऑफ इलाइट वेटरनरी ऑफिसर्स रजिस्टर्ड पंजाब सूर्य, अब आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर कोई परफेक्शन का एसोसिएशन ऑफ एलीट वेटनरी ऑफिसर्स रिटायर्ड पंजाब रजिस्टर्ड सूर्य एनक्लेव जलंधर की ओर से सैड डिमाइस ऑफ डॉक्टर राज शर्मा हैज शॉक्ड अस ऑल. President and all members join me in conveying our heartfelt condolences to your family. May Almighty God bless the departed soul, rest in peace, and grant family the strength to bear untimely loss. From the elite veterinarians of Punjab. ब्राह्मण समाज में शास्त्री नगर डॉक्टर राज शर्मा जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। डॉक्टर शर्मा जी बहुत ही नेक, दिल, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के मालिक थे। परम परमेश्वर परमात्मा से विनती है कि ऐसी एक आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, वह परिवार को जो है दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। श्री ब्राह्मण सभा सुजानपुर, श्री ब्राह्मण सभा सुजानपुर की तरफ से डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया गया है और इस जो है पिछली आत्मा की शांति के लिए 2 दिन का जप किया गया और प्रभु से प्रार्थना की गई कि इस विषय और एक आत्मा को अपने चरणों में उचित स्थान प्रदान करें और परिवार को यह गहरा शोक सहने की शक्ति प्रदान करें। डॉक्टर सहित डॉक्टर जी एक नेक, ईमानदार और समाजसेवी हैं और एक मेहनती इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके चरणों में स्थान करें। Brother, friend, bosom, buddy, my soul companion, and my soul and best companion. He lived a king-size life, and he said, as he said, he did it. He always welcomed us with open arms whenever we went to see him on his posting places. We were together since childhood, and we learned cycling together. We went to restaurants together and saw 9 to 12 night movies, many night movies. When he got married in 1970, I joined Bharat from Batala, where I was working. Our children were also of the same age group. Kind-hearted Madhu Bhabi always welcomed everyone and each one, whoever visited them. Their hospitality was unmatchable and beyond any description. Madhu ji and my wife were very comfortable with each other throughout their life. And Dr. Raj used to say, I love my wife, I love good friends, I love good aroma around me, and I love good non-vegetarian food. And he was always dressed in stylish. We all will miss him till we live and pray to God, may his soul rest in peace.